लोग देखने वाले हैं कि ट्रायल के स्टेप्स क्या होते हैं, सिविल ट्रायल के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये पीडीएफ देखेंगे। इसमें हम लोग को सब कुछ पता लग जाएगा। कैसे हम ट्रायल जो होता है वो कैसे होता है, कैसे उसके स्टेप्स वगैरह चलते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। यही करना है कि आराम से देखना। और ये वीडियो जो है अ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए, इफ़ यू वांट टू if you are pursuing your LLV or LLM or something else, or Barna judiciary preparation, so that you can consider this video as helpful for you in English and also in Hindi. I will talk to you in Hindi and English both. And if you are just only a Hindi person, so that you can pursue my video or see my video that is only in Hindi, and that video is on will be uploaded soon. Or either if you are watching this video after some time of my uploading this video, so that you can see it on my channel. Okay, let's see that video. So we are not going to waste our time on introduction, so we are just start from institution of suit. So stage one of the suit, that institution of the suit. Okay, sorry guys, it is, I think my laptop is not working properly. Okay, start. So the first thing is filing of plaint. Description: a suit instituted by presenting a plaint to the court or such officer as it appoints in that behalf. The plaint must contain specific particulars as per law. If you want to know that what are the specific particulars in a plaint, so that you can refer my video that is uploaded in the uh, drafting playlist on my YouTube channel, so you can get it. And also you can search it in on my YouTube channel on YouTube, so that you can see that video. Description: so that description is that you can institute when you want to institute a suit, you have to file a plaint. So, and in that plaint you have to disclose all the facts and parties name, their addresses and etc and everything. So now next thing is summons to defendant. You have to summon all the defendants, those are parties in the suit. Once the plaint is filed, the court issues summon to the defendants. It doesn't mean court issues summons, so court will prepare summons. You have to prepare summons and submit it in court. Then court men, those who serve summons to the parties, so they will carry that summon and deliver it to the defendants. Okay, but you have to prepare that summon and you have to submit this summon to the court. And it is also order 5 or rule 1 to 30. Okay, you can read that rules in CPC. In after this summon, they will file a written statement. So to file a written statement, there is a specific time that you can file written statement within 90 days of the period of after summoning the person, or summon is delivered. After that period, you have only 90 days to file a written summons. It doesn't mean that it is a certain limit, that, but you can get a exception of the time, or so that you can file a summon if your time, if your 90 days has passed away. So appearance of parties and consequences of non-appearance. Those whose parties will be appear or not, that is here. Okay, appearance of parties. Parties are required to appear in person or by their pleaders on the date fixed in the summons. ठीक है.
पार्टी कब अपीयर होंगी? जब समन में डेट जो दी गई है उस दिन। ऑर्डर 9 है, रूल 1 है। नॉन अपीयरेंस ऑफ वन और बोथ पार्टीज, अगर आप प्लेंटिफ ही नहीं आ रहा है, डिफेंडेंट आ रहा है तो सूट डिसमिस हो सकता है। डिफेंडेंट नहीं आ रहा, प्लेंटिफ आ रहा है तो एक्स पार्टी भी हो सकता है। बट एक्स पार्टी हो भी गया और डिफेंडेंट अगर प्रूव कर देता है कि कैसे वो क्यों नहीं आ पाया, उसके बाद में व्हाट वर द कॉजेज टू नॉट अपीयर इन द कोर्ट, सो देन कोर्ट कैन रिस्टोर द सूट। बोथ एब्सेंट, सूट में बी डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट। अगर दोनों पार्टी नहीं तो कोर्ट इसको भी डिसमिस कर सकती है सूट को। ऑर्डर 9 है, रूल 2 से 14 है, ठीक है। प्लीडिंग्स क्या है? प्लीडिंग्स, प्लेंट आ गया, वही अभी बताया था प्लेंट क्या है। प्लेंटिफ्स स्टेटमेंट क्या कहता है, ये वही फैक्ट कहता है। कॉज ऑफ एक्शन कहता है, रिलीफ क्या मांगा ये। ऑर्डर 7 रूल 1, ऑर्डर 7 रूल 1 to 8, सॉरी ऑर्डर 6 है, रूल 1 है, ऑर्डर 7 रूल 1 to 6 है। रिटर्न स्टेटमेंट वही है कि डिफेंडेंट क्या कह रहा है, आपने जवाब दे रहा है, वो सारी चीज़ें सेट ऑफ और काउंटर क्लेम वगैरह। मैंने रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिखना है आपको, प्लेंटिफ कैसे, प्लेंट कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि चैनल पे, ओके। ऑर्डर 8 रूल 1 to 10 है ये। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। नाउ आफ्टर these everything, written statement is filed, parties are appearing, non appearing, and they are going to start discovery and inspection. Parties can deliver interrogatories questions in writing for the examination of the parties. Parties can deliver questions that should be asked to the opposite parties. Okay, order 11, rule 1 to 11. Discovery of document. If parties are presenting any document as a evidence or something else, so that court can verify these documents. Now next thing, inspection of documents. Same thing, parties have the right to inspect documents disclosed by the opposite parties. Parties भी देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ऐसा नहीं parties नहीं देख सकते। इश्यूज क्या है? ऑर्डर 14 में दिया गया है कि इश्यूज क्या रहेंगे, ठीक है, 1 to 7। तो इश्यूज क्या होंगे, ये चीज़ें जब कोर्ट जो होती है उसकी बहस सुनती है, आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, वो कहते हैं कि क्या क्या इशू, वो खुद कंसिडर करते हैं। आपने कुछ सॉर्ट किया, रिलीफ सॉर्ट किया, सारी चीज़ें वो देखते हैं, आपकी बात सुनते हैं, सामने वाली पार्टी की भी बात सुनते हैं, अपोजिट पार्टी की, तो फिर उसके बाद में डिसाइड होता है कि क्या क्या इश्यूज होंगे और वो इश्यूज दे दिए जाते हैं पार्टीज को। फिर उसके बाद में क्या होता है, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कि कौन कौन विटनेस है उनको समन किया जाता है और फिर वो विटनेस आते हैं। डिस्क्रिप्शन, पार्टीज कैन ऑल अप्लाई टू द कोर्ट फॉर समन्स टू बी issued टू पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड एज विटनेस। वो विटनेस हैं तो उसके लिए उनको भेजा जाता है समन। एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस पार्टीज ही बियर करती हैं, ठीक है। हियरिंग ऑफ द सूट एट एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, फिर सूट की हियरिंग होती है, कैसे चलेगा कैसे नहीं, सारी चीज़ें, विटनेस का एग्जामिनेशन होता है, ये सारे। राइट टू बिगिन किसका होता है, प्लेंटिफ का ही होता है, लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक माई लैपटॉप इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, बट नाउ स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। स्टेटमेंट्स होते हैं, पार्टीज के होते हैं, एविडेंस का प्रोडक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ओरल टेस्टिमनी जो कि विटनेस वगैरह देते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये कौन करता है, अपोजिट पार्टीज करते हैं। मेरा आपका विटनेस वादी है, आप तो फिर प्रतिवादी का एडवोकेट करेगा, और अगर उसका कोई विटनेस तो फिर आपका एडवोकेट करेगा। नेक्स्ट आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट्स रिटर्न भी होते हैं और ओरल भी होते हैं, ठीक है। तो कोई सी होते हैं, जनरली रिटर्न आर्गुमेंट से आती हैं, ओरल तो कम ही आती हैं, बाकी रिटर्न आर्गुमेंट से ही ओरल आर्गुमेंट कर दी जाती है, ठीक है। द पार्टीज और देयर प्लेडर्स एड्रेस द कोर्ट समराइजिंग देयर केस एंड एनालाइज द एविडेंस इन द लाइट ऑफ द इशू। ऑर्डर कितना है,
18 रूल 2 सब रूल 3A 3B इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट में कुछ रूल्स आए हैं। और जजमेंट एंड डिक्री, जजमेंट आता है, डिक्री आती है। द कोर्ट डिलीवर्स इट्स जजमेंट स्टेटिंग द रीजन फॉर इट डिसीजन। रीजन तो जरूरी देने कोर्ट को। ऑर्डर 20 में है, रूल 1 से 5A तक। ड्राइंग अप ऑफ डिग्री, फिर ड्राइंग ऑफ डिग्री जो 30 डेज के अंदर अंदर बना दी जाती है, बट कोर्ट की हालत ऐसी है कि वो नहीं बना पाते कई कई दिनों तक, 3 3 महीने तक। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो 30 डेज के अंदर डिग्री हो जानी चाहिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति अपील करना चाहता है तो वो अपील कर सके 30 डेज के अंदर, क्योंकि वहाँ पे भी विद इन 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। किसी में 90 डेज का, वो अलग अलग चीज़ पे रिव्यू करता, वो करता है, डिपेंड करता है। ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।